Normally in this remote TV on and off, basically volume, madam, mute and unmute. This is a basic thing. If you are connecting any input connection, it will be in the left hand side. Please press the pin button, ma'am, and it will detect here. For example, you are connecting the USB means USB name will come. HDMI means HDMI 1, 2, 3. Everything it will come when you are connecting the backside input connections. After that, you want to connect the Wi-Fi means go to the settings, ma'am. After that, all settings. In this all settings, the picture mode will be the APS mode, auto power save mode. It will take automatically. When you are playing some cinema content, means it will go to cinema content. Automatically it will go. Okay. After that, sound mode. In this sound mode, AI sound, artificial intelligence sound. Same thing like picture. For example, when you are connecting or playing some news content, means it will go to the clear voice pro. Background music will be decreased, voice will be increased. Okay, like that the sound. Okay, after that go to the general, madam. Network for Wi-Fi connection. You can connect wired or Wi-Fi. Okay, already connected, ma'am. Go to the home button. This is the home button. Press the home button. In this home button, this first page we are called as banner page. Trending videos will come here like notification. After that, app list, inbuilt apps, this much is there, madam. If you want to download means you can go to the apps. You can go to the apps and you can download. After that, when you are connecting the backside any connections, it will detect here. In this home page, everything you can see. After that, YouTube trending videos, Amazon Prime trending videos, Apple promotion videos, new release films. You can see here. This is a Magic Motion remote. Its work like a mouse and universal remote. You can convert DVD player, set-top box, everything. HE, home entertainment product, you can convert as a universal remote. You can operate in one remote. Okay. After that, you can, one thing is there, madam, AI ThinkU. Artificial intelligence, you can pronounce. For example, press the long press for mic and you can pronounce here. Can I do, ma'am? Yeah. YouTube. Voice is not recognized. YouTube. Going to YouTube app. Pronounce power off. Power off. 1 second, ma'am. Power off. Okay, I'll turn off the TV. In this TV, every settings you can pronounce and you can operate. In this TV. Not external set-top box and all. Only TV. Okay, madam? ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಸರ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಆ್ಯಪಲ್ಲ? ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ವೈಫೈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು, ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಲಿನ್, ವಾಟರ್, liquid items, advertise they will show in marketings. You don't use, ma'am. Okay. Afterwards, you want to use alkaline shells in for this remote. Normal shells, if you use means the remote will damage due to some voltage fluctuation from battery, ma'am.
If anything else means you can call me or you can call to call center, sir. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಲೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸು ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ओके ओके ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. हे अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव यूनिक। तो जी मेरे वीडियो में आपका बहुत दिल से खुशामदीद। तो जी आज की वीडियो में मैं अपने टीवी के अनबॉक्सिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हमने अभी नया टीवी लिया है 65 UP77 LG UHD टीवी। तो जी ये इसका मॉडल नंबर है। तो जी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा टीवी है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ीचर्स है, काफ़ी सारे इसके अंदर के जो नए नए फ़ीचर्स हैं और आपने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें ना करनी है, कैसे आपने इसकी केयर लेनी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो ये रियल 4K है, जैसे फिर मार्केट में नया आया है। ये 2021 मॉडल है और क्वाड प्रोसेसर 4K है। थिन QL होम डैशबोर्ड इसमें मिल जाएगा आपको और ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इसके अंदर सबसे जो मेजर लेने का अगर रीज़न इसको बताया जाए तो इसकी पिक्चर क्वालिटी और क्लियर क्वालिटी इतनी अच्छी है जिसमें आपको ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें HDR 10 Pro है, फिल्म मेकर मोड मिलता है आपको, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, एप्पल टीवी, यूट्यूब, वूट, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आपको ऐड करने हैं तो आप प्ले स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये UP77 मॉडल है। अल्टीमेट गेम प्ले इसको आपको इसमें मिल जाएगा। ERC, HGIG, ALM और गेम ऑप्टिमाइज़र भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और हमने जो लिया ये 65 इंचेस का टीवी है। तो जी इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोगों ने फर्स्टली डिसाइड किया था कि हम लोगों ने 55 इंचेस का टीवी परचेज़ करना है। हम लोगों का वही माइंडसेट था और हम लोगों ने उसी के हिसाब से टीवी को परचेज़ करना था। बट आप जब कोई चीज़ लेने जाते हो, आप जा रहे हो, तो आप देखिए काफ़ी जगह पर सर्च करिए। जैसे MRP प्राइस अलग होती है, शोरूम की प्राइस अलग होती है और ऑनलाइन ऑफ़र्स में आपको कुछ चीज़ें सस्ते में मिल जाती है। तो जी लेने से पहले आप इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखा करें तो ये आपके हमारे लिए बहुत बेहतरीन डील हो सकती है। फिर आप देख सकते हो इसकी क्लियरिटी। ये जो वीडियो मैंने मोबाइल से शूट किया है तो मे भी इसलिए आपको उसमें लाइंस आ रही होगी, बट एक्चुअल क्वालिटी में वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त 4K क्वालिटी इसको आप बोल सकते हैं। और ये 4K क्वालिटी और इतनी क्लियरिटी इसमें आपको मिल जाती है, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। और हमने जो लिया है ब्रिजल लेस है। मतलब ब्रिजल लेस ये होता है कि जो टीवी की जो फ्रेम होती है उसको हम ब्रिजल बोलते हैं। तो कुछ में वो ब्रॉड होती है, कुछ में वो नहीं होती है, कुछ में एकदम लेस अमाउंट में होती है। तो जो इसके अंदर जो है वो लेस अमाउंट में थी, मतलब जैसे ना के बराबर विदाउट ब्रिजल, ऐसे आप समझ सकते हो वैसी ये थी। तो हम लोगों ने उसको प्रेफर किया लेना, क्योंकि जो होती है उसकी जो टीवी की प्राइस होती है देन वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी वो विद ब्रीज़र है या विदाउट ब्रीज़र है। तो देन उसके ऊपर ये प्राइस फ्लक्चुएट होती है, अराउंड 3000 to 5000 के ऊपर नीचे ऊपर होती है। बट ब्रीज़र लेस लेते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट एज़ यूजुअल पे करना ही पड़ती है। तो जी हमारा भी यही प्लान था 55 इंचेस का टीवी लेना है, क्योंकि वो सफिशिएंट होता है। बट जब हम लोगों ने 65 का देखा तो हमको 55 इंचेस का पसंद ही नहीं आ रहा था टीवी। दैट द रियल फैक्ट, जब आप कोई चीज़ देखते हो और आपको उससे अच्छी चीज़ दिख जाए तो बार बार आपकी नज़र उसी पर जाती है। तो हम लोगों ने देन विल डिसाइडेड कि हम लोग 65 इंचेस का ही टीवी परचेज़ करते हैं, क्योंकि हमारी वॉल एरिया और हॉल के हिसाब से 65 इंचेस का टीवी जो था वो बहुत अच्छे से उस पर सूट हो रहा था। हमने 70 इंचेस का भी देखा बट वो थोड़े वॉल के बाहर जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर 70 इंच का कैंसिल किया। और ये तो ऑब्वियस बात है कि जब आप चीज़ बड़ी ले रहे हो और आप अपनी ख्वाहिशें बढ़ा रहे हो तो आपको तो आपकी पॉकेट
का भी ख्याल रखना पड़ता है और आपको उसके हिसाब से वो ज़्यादा अमाउंट तो पे करनी ही थी। बट जैसे कोई चीज़ होती है जो हम लोग फ़र्स्ट टाइम लेते हैं, फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं, देन वो हम लोग जो जितनी कॉस्टली चीज़ ले रहे हैं, तो ये होता है कि आप एक ही टाइम वो चीज़ परचेज़ करते हो, एक ही टाइम लेते हो। तो ये सारी बातों की वजह से हमने सोचा कि अगर ले रहे हैं तो हम लोग अच्छा ही ले लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कि आप लोग बार बार से फिर से ये चीज़ें परचेज़ करना स्टार्ट कर दो, फिर से ले लो 4-6 महीने में, ये सब तो नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर देन 65 इंचेस का टीवी परचेज़ किया। तो जी मैं आपको बता दी चलूँ कि इसका जो टीवी का जो MRP है, इसका MRP प्राइस था 1,30,000 रुपीज़। ब्रिजल लेस LG UHD टीवी UP 65 UP77 इसका मॉडल नंबर है। तो जी जब आप ऑनलाइन पे हम लोगों ने परचेज़ किया न्यू ईयर के टाइम पे, तो न्यू ईयर के टाइम पे ये था कि ऑफ़र्स चल रही थी, काफ़ी सारा डिस्काउंट था। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या कुछ भी चीज़ें लेते हो तो आप ये चीज़ों को ख्याल रखिए कि आप ऑफ़र्स के टाइम पर ही ले, जैसे दिवाली और न्यू ईयर का टाइम होता है, क्रिसमस समथिंग, तो वो टाइम पर आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ऑनलाइन न्यू ईयर के टाइम पे इसका प्राइस था 92,000 रुपीज़। देन हम लोगों को ब्रिजल लेस चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों ने पहले ऑनलाइन पे चेक किया, बट ऑनलाइन पे विद ब्रिजर ही था 65 इंचेस में, जिसकी जो बॉर्डर आती है, फ्रेम आती है टीवी की, वो थोड़ी ब्रॉड आती है। उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है, बट ये होता है कि आपकी टीवी की स्क्रीन कम हो जाती है ड्यू टू दी बॉर्डर। तो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग दैट वी आर परचेसिंग अ ब्रिजल लेस। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे शोरूम में तलाशी की। तो जैसे आप एक शोरूम में लेते हो तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, देन नेक्स्ट शोरूम में आप जाते हो तो वहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती है, और प्राइस फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। ये बात आप ख्याल रखिए, हर शोरूम में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो दैट्स वाई आपको लेना है तो आप 2-4 शोरूम में जाकर प्राइस निकालिए, मॉडल्स देखिए, तो आपको कंपनीज़ में, मॉडल्स में, प्राइस में फ्लक्चुएशंस और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देन आप लास्ट में आपको क्या लेना है, कहाँ से लेना है, देन आप फिर परचेज़ करिएगा। ये मैं आपको अपना सजेशन दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही किया था। तो जी हमको शोरूम में इसका प्राइस मिला 89,000 रुपीज़। तो विद ब्रिजल नहीं, विदाउट ब्रिजल हम लोगों ने लिया है, सॉरी। तो 89,000 हम लोगों ने को ये मिला। देन हम लोगों ने इसके साथ में स्टेबलाइज़र भी परचेज़ कर लिया, क्योंकि स्टेबलाइज़र तो मस्ट होता है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कभी ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाती है, सडनली बीच में चली जाती है, तो जो हमारा टीवी है उसके ऊपर कोई हार्श रिएक्शन ना हो, या उसकी सेफ़्टी के लिए आप कर सकते हो कि सेफ़्टी के लिए हम लोगों ने स्टेबलाइज़र मस्ट होता है। वो आपकी टीवी की साइज़ कितनी है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टेबलाइज़र लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने स्टेबलाइज़र भी साथ में वहीं से परचेज़ कर लिया। तो पहले हम लोगों ने ये प्लान था कि हम लोगों ने वॉल पे इसको माउंट कराना है, वॉल पे ही लगाना है। बट जैसे टीवी का साइज़ बड़ा होता है और घर में बच्चे, आपकी फैमिली है, तो पता ये कि अगर कोई गिरा विरा ना दे इसको कोई हार्डली जाते आते वक्त इसको टच करके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इन शॉर्ट टर्म की इसको हम लोगों ने सेफ्टी मेजर के हिसाब से यही सोचा कि हम लोग इसको टेबल टॉप रखते हैं। तो इसीलिए फिर हमने इसके लिए टीवी टेबल के ऊपर हम लोगों ने इसको रखने का डिसाइड किया, और हम लोगों ने बाद में टीवी टेबल परचेज़ कर लिया अभी। तो जैसे इसका प्राइस हमको 89,000 रुपीज़ मिला, और जैसे टेबलाइज़र ऐसे जाके हमको 95,000 तक ये टोटल हम लोगों का गया है। तो 65 इंचेस मतलब ये होता है 164 सेंटीमीटर, और ये 2021 न्यू मॉडल आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इसकी कुछ केयर लेनी है, जो मैं बताती चलूँ आपको। जैसे आप इसके अंदर बैटरी लगवा रहे हो, तो ये जो इसका जो रिमोट है, ये मैजिक रिमोट है। इसका मॉडल है MR21GA। तो जो मैजिक रिमोट के आपको ख़ासी तौर पर आपको इसका ख्याल रखना है, क्योंकि आपके इसके अंदर जो बैटरी जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको सिर्फ अल्कलाइन बैटरी ही यूज़ करनी है। अगर आप अल्कलाइन बैटरीज़ के अलावा कोई नॉर्मल और सिंपल सादी बैटरी डाल देते हो तो वो आपके रिमोट को हार्श करती है, रिमोट जल्दी से आपका ख़राब हो जाएगा, ऑपरेट करने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप पहले से
उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको अल्कनाइन रिमोट ही यूज़ करना है, तो आपने वही लेना है। देन टीवी स्क्रीन आपको जब क्लीन करनी है तो आपने कोई भी कॉटन कपड़ा से उसको क्लीन नहीं करना है, या तो कॉलिन और कोई डिटर्जेंट लिक्विड, ये जैसे टीवी में एड्स दिखाए जाते हैं, ये कुछ भी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सिंपल मसलिन क्लॉथ लेना है, मसलिन क्लॉथ से सॉफ्ट जो आता है बिल्कुल, उसी से उसको हल्के हाथों से क्लीन करना है, वरना उसके ऊपर ग्रीन पैचेस पड़ जाएंगे वो अगर डम होता है तो ये बातों का ख्याल रखना। और आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है तो आपको बताती चलूँ कि आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपके टीवी को नहीं रखना है जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो, और हमारे गैस या माइक्रोवेव के पास इसको नहीं रखना है, और जैसे जहाँ पे थोड़ी हवा, जहाँ पर ज़्यादा हवा और बारिश का एक्सप्लोजन होता हो वहाँ पे इसको नहीं रखना है। और इसके पास कोई जैसे फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट हो गए, गैसोलीन या कैंडल्स, ये सारी चीज़ें इसको नहीं रखना है। अदरवाइज़ इसके रिज़ल्ट में ये होगा कि फायर हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, कंबक्शन हो सकता है, एक्सप्लोजन, माल फंक्शन भी हो सकता है, और प्रोडक्ट डिफॉर्मेशन, आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। और इसकी फ़ीचर्स की बात बताती चलूँ मैं आपको, तो इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग हो जाएगा। स्क्रीन मिररिंग मतलब आप अपने मोबाइल की, लैपटॉप की कोई भी स्क्रीन इसके साथ, टीवी की स्क्रीन के साथ एक साइड में प्ले कर सकते हो, मतलब डबल स्क्रीन आप प्ले कर सकते हो, उसको स्क्रीन मिररिंग बोलते हैं। और वाइड रेंज आपको इसमें मिल जाएगी, वाइड एंगल आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें जूम इन जूम आउट के सारे ऑप्शन है, फुल स्क्रीन मिलती है आपको, वाईफाई सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और वाइड एंगल व्यू मतलब आप सो कर देखो, कॉर्नर से देखो, वन साइड से देखो, तो आपको सेम ही व्यू मिलेगा। ये सारी चीज़ें अदर टीवी में नहीं थी, ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादा पसंद आई कि इसका जो वाइड एंगल व्यू है वो सबसे बेस्ट था, और स्क्रीन मिररिंग ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो इसीलिए हम लोगों ने फाइनली ये टीवी लेने का डिसाइड किया। और जो मैजिक रिमोट है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी ज़्यादा है, 2.400 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.4835 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और आउटपुट पावर जो है इसका 8 dBm आपको मिलता है। पावर सोर्स है 1.5 वोल्ट विथ 2 अल्कलाइन बैटरीज। टेम्परेचर रेंज आएगा 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं ये आपको इसी टीवी में मिलेंगे, जो है LG UHD TV 65 UP77। अगर आप चाहते हो तो नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप टीवी परचेस करने का सोच रहे हो, आपके ख़्याल में आप टीवी लेना चाहते हो, तो ये न्यू मॉडल है और सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन और टॉप रेटेड है। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी, आप बड़ी चीज़ ले रहे हो तो आप ऑनलाइन से इसको ना परचेज़ करें, क्योंकि आप जब 1 लाख रुपए की चीज़ ले रहे हो तो उसका अच्छा इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम लोग शोरूम से लेते चीज़ें, तो ये होता है कि आप जैसे ये ब्रिज़ल लेस तो ऑनलाइन पर अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने ब्रिज़ल लेस ही लेना है तो आप शोरूम प्रेफर करें। मैं बेंगलोर में, इसीलिए मैंने यहाँ के शोरूम में प्रेफर किया। आप जहाँ से भी हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, ठीक है, मुंबई, तो आप वहाँ के आसपास के शोरूम में पहले ट्राई करिए, देन आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो वहाँ से और ऑनलाइन की प्राइस आप कंपेयर कर सकते हो। इफ़ आपको डिस्काउंट मिलता है तो डेफ़िनेटली आप लीजिए ऑनलाइन। तो फिर ये लेने के बाद ये होता है कि उसका जो इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन लेते हैं तो काफ़ी बार हमको कस्टमर केयर को बार बार कॉल करके इंक्वायरी करनी पड़ती है, बुलाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और वो इतना हमको रिस्पांस भी अच्छे से नहीं करते, इतना अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं करते। समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स नहीं होता है। तो जैसे कुछ चीज़ें इसीलिए आप लोगों ने शोरूम से परचेस करते हैं और वो आपके आसपास की लोकेलिटी में ही लोकेटेड है, तो उनको आना और देखना, वो सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है। और अगर कुछ पार्ट मिसिंग है और डैमेज आ रहा है तो वो भी आपको तब क्या तभी रिप्लेस होके मिल जाता है। तो इसके साथ आपको एक्सटर्नल वारंटी मिल जाती है 1 ईयर की। और अगर आप वारंटी बढ़वाना चाहते हो तो वारंटी का तो ये सीन था यहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको वारंटी लेनी है तो पर ईयर 7,000 समथिंग आपको पे करना होगा पर ईयर का। तो आपको 3 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो 21 to 24,000 रुपीज़ 3 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही थी। बट हम लोगों ने फिर वो लेने का कैंसिल किया, क्योंकि एक तो पहले आपका टीवी 1 लाख रुपए का आया है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए यही काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो उसमें आप 24,000 का और एक्सटर्नल वारंटी लोगे। और वैसे भी 2-4 साल तो टीवी को कुछ होता ही नहीं अगर आप उसकी अच्छे से केयर करो तो।
अगर प्रॉब्लम आनी है तो उसके बाद ही आनी है, तो फिर वो वारंटी लेने का फ़ायदा क्या है ना। तो फिर ये मेरा थिंकिंग है एक्चुअली। तो अगर कुछ कुछ लोगों के चांसेस होते हैं, फैमिली बड़ी है, बच्चे वगैरह ख़राब कर देते हैं, तो इसके लिए वो लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और माज़रत चाहती हूँ अगर मेरी कुछ बातें रिपीट की है, तो कुछ कुछ बातें, बड़ा वीडियो होता है तो कुछ कुछ बातें ऑब्वियसली वो आ जाती हैं, तो इसीलिए उसके लिए माज़रत। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो और मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो डेफ़िनेटली चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी बातें सुनने के लिए और मुझसे रब्ता रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, और मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने में मेरी हेल्प करिएगा। तो जी, बेहद बेहद शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या साइज है? ಅದು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೋಕಲ್ ಸೌಂಡೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೋಕಲ್ ಸೌಂಡೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ.